He killed him then and there, and he had chopped his body, and they had packed it up and disposed it off. तब तक वो उसे मतलब मार चुके थे पहले ही। Criminals में ये बहुत most common होता है, lack of empathy. They are not guilty about anything, rather they find pleasure. बाद में और भी लड़कियां आती थी वहां पे, एंड फ्रिज में उसने उसकी बॉडी काट के रखी हुई है। कैन यू इमेजिन? But then she saw some red flags with him, and then it was found out that he had already killed 10 girls. The difference, other than all the cases, is that ये boil करता था brains. But then this guy sensed something is wrong. So the neighbor constantly used to complain कि आपके घर से इतनी smell आ रही है, and then used to be like कि ऐसी ऐसी है. Hello guys, welcome to Unseen X. My name is Uday. Today's topic is going to be about criminal psychology. We are going to discuss many interesting cases today, and it's going to be a little dark, so make sure you're watching it with someone. And let's start the show. So welcome Malika, how are you? I'm good. Hi Uday, thank you for having me in the show. Today we are going to start with सबसे पहले तो like what is your take on criminal mind? On a criminal mind, like do you think it's environmental or genetic or psychological? So that's a very good question. Okay, so in my opinion, I think they overlap each other. So genetic is basically, the criminal minds who have some brain abnormalities. I think that leads to violent behavior. And if we talk about psychological, that could be trauma, somebody's going through, poverty. And if we talk about psychological, I think that depends on the personality disorders. People having anti-social personality disorders, lack of empathy. And that's how I can say that we can see inside the criminal mind. Have you heard about this case? So there was this Tinder case uh, of a girl named Priyanka Seth. Okay. तो उसमें क्या था कि so she used to talk to people ऐसे, and she used to target all the businessmen. Okay. ठीक है, तो उसमें क्या हुआ कि she matched with someone and they were talking, and the guy he was just flaunting कि भाई मेरा या I have this business, I'm rich and ये वो करके. तो the girl she was like okay that's great, and थोड़े टाइम बात करी, and they talked, I guess they talked on call as well, अपना पूरा मतलब ढंग से बात करते रहे कुछ टाइम. Then she called him over. The guy he was married, ठीक है, but he was like talking to her, and then when she called him over he went over there. तो वहाँ पे when he went तो पता चला that she wasn't alone. There were two guys. So what they did was कि उसको पहले तो बांध दिया उन्होंने, ठीक है, एंड देन दे किल्ड हिम. पहले उन्होंने कोशिश करी गला घोट के तकिए से मारने की, फिर उसके बाद दे किल्ड हिम विद, आई गेस उससे मरा नहीं वो, कुछ ऐसा सीन हुआ तो नाइफ वगैरह से उसे मार दिया. एंड उससे पहले, मारने से पहले व्हाट दे डिड वाज कि उन्होंने उसके फादर को कॉल किया रैंसम के लिए. ठीक है, कि हमें 25 लाख रुपए चाहिए, इतने पैसे हमें चाहिए, तो वो अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा बेटा ज़िंदा रहे तो जस्ट ट्रांसफ़र अस दी अमाउंट. तो उसके फादर ने कोशिश करके मतलब अरेंज वगैरह करा अमाउंट, बट तब तक वो उसे मार चुके थे पहले ही. बाद में जब पता चला सारे केस के बारे में, सो देयर इज दिस वीडियो ऑफ दैट गर्ल, मतलब व्हेन शी वाज फाउंड गिल्टी, यू सी द वीडियो कि मतलब द वे शी इज़ टॉकिंग, मतलब कोई गिल्ट नहीं, एंड शी इज़ जस्ट लाफिंग, शी इज़ जस्ट स्माइलिंग, एंड शी इज़ लाइक ऑल ओके कि भाई क्या हो गया, मतलब मैंने मार दिया तो, लाइक दैट. तो मतलब ऐसे यूजुअली बिहेवियर काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था लड़की का. तो ऐसे केसेस, लाइक हाउ डू यू डिस्क्राइब दीज केसेस? So basically, what you're telling is very true, and these people often tend to show these kind of traits only, because अगर आप देखो criminals में ये बहुत most common होता है, lack of empathy. They don't have empathy, and these usually traits stem from trauma, childhood abuse, and or their any XY situation or their family dynamics.
सो वहाँ से इनका गुस्सा, एग्रेशन, सो दे आर नॉट गिल्टी अबाउट एनीथिंग, रादर दे फाइंड प्लेजर इन दैट, they find satisfying more into it. Yeah, because like I saw the video and I was like भाई वो अपना उसको पुलिस रिमांड में लिया हुआ है and she's laughing and she's like कि हाँ मर्डर कर दिया and the similar case, like have you heard about this case? It was in 2018 I guess, एक आफ्ताब and श्रद्धा का जो Yeah, केस था, they got quite उसमें भी वो मतलब साइकोटिक सा बंदा था, बट मतलब क्या किया था, सो दे वर लिविंग इन छतरपुर, है ना, दे वर फ्रॉम मुंबई। उसने बाद में अपनी गर्लफ्रेंड का गला घोट के फिर चॉप करके फ्रिज में रख दिया था, एंड रोज़ रात को जाता था वो अपना पॉलीथिन में एक एक फ्लैश का पीस लेके जाके जंगल में छोड़ के आता था। एंड दैट गाय, इफ़ यूल सी, मतलब मैं काफ़ी उसके ना क्लिप्स वगैरह देख रहा था जो न्यूज़ आ रही थी, सो उसमें इफ़ यू एक्चुअली सी द सोशल मीडिया ऑफ दैट गाय, तो मतलब इट सीम्स लाइक ही इज़ वेरी काइंड, चाहे चैरिटी वगैरह की बात हो गई, चाहे एनिमल लवर हो गया, इस सब मतलब इन सब चीज़ों के बारे में पोस्ट करना, एंड मतलब ऑल द नाइस थिंग्स, एंड ही टर्न्ड आउट टू बी एकदम ही अलग ही साइकोटिक सा बंदा। सो मतलब दीज थिंग्स आर ऑल्सो कि मतलब भाई तुम सामने वाले को एकदम से डिसीव कर सकते हो। they know that how to behave in public, and then you don't know कि वो actual में है क्या. You wouldn't know a normal person going through such kind of psychotic behavior. एंड देन ही वॉज लिविंग एकदम नॉर्मली, एंड बाद में और भी लड़कियां आती थी वहाँ पे, एंड फ्रिज में उसने उसकी बॉडी काट के रखी हुई है। कैन यू इमेजिन? डू यू हैव एनी पर्टिकुलर, बिकॉज आजकल देयर आर लॉट ऑफ केसेस कमिंग फ्रॉम बम्बल एंड टिंडर, काफ़ी स्कैम्स हो रहे हैं। डू यू हैव एनी काइंड ऑफ अ केस? Well, if I recall, I do have one incident to share. So one of my very close friend was working in Mumbai. So her colleague basically, so she must have told her that they might have been going through Bumble. तो हुआ ये कि वो किसी को Bumble के through match हुआ होगा, and she must have liked that boy. But the point was she didn't talk to that guy much. And सीधा ये आया that let's meet up. So, but I don't know, my friend told that what clicked her, she didn't go on the first meet. फिर थोड़ी बात करी एक दो दिन, and then they decided let's meet. But she decided not at the guy's place, but at her place. So she might have called that guy. वो आया, they must have talked and everything. But then she saw some red flags with him. Maybe he must have got too angry, और ही मस्ट हैव गॉट टू पोजेसिव, मतलब उसको उसने जाते ही कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे होंगे जो शी माइट हैव फेल्ट अनकंफर्टेबल, एंड ही माइट हैव गॉट एंग्री बिकॉज शी सेड कि मतलब कि मुझे जाना है काम से, सो अगली बार मिलते हैं. सो ही वाज लाइक कि इतनी जल्दी क्यों, यू नो, लेट्स अभी तो मिले हैं एंड ऑल दैट. सो व्हेन शी सेड उस दिन मतलब दे मस्ट हैव कि ठीक है वो चला गया होगा, बट द नेक्स्ट टाइम शी डिसाइडेड कि अब मैं उसकी प्लेस पे जाती हूँ. सो व्हेन शी वेंट टू हिज प्लेस, पहले तो उसने काफ़ी टाइम तक दरवाज़ा नहीं खोला, एंड व्हेन ही डिड तो उसको बहुत गंदी अजीब सी स्मेल आई, यू नो, लाइक अ डेड एनिमल और लाइक अ बॉडी. तो उसने इधर देखा होगा, तो शी मस्ट हैव फेल्ट कि ये मतलब वो एकदम से वो हो गया कंट्रोलिंग कि कहाँ जा रही हो, यहीं बैठो. तो उसको थोड़ा और क्यूरियस लगा होगा कि नो दिस इज़ वेरी, मतलब क्यों मैं नहीं जा सकती. So she might have gone to washroom, and then she must have explored another room, and then she must have found out, you know, packages like, you know, these bags, polythene bags, and then when she opened, then she saw these meat and all, and then she just got, you know, so I think that girl must have been very strong क्योंकि उसने she must have tried to escape somehow, and she was saved, and she literally came out of it, and then she complained, you know, to the police and everybody, and that guy was caught, and then it was found out that he had already killed 10 girls, might have lured them, brought to his apartment, got them intoxicated, and killed them and packed. भाई साहब. So, and she was very, you know, she was in very shock. तो that तो like I would want to ask you, like if you're meeting someone, like suppose if you matched on a dating app, ठीक है, if you're meeting someone, like what are the precautions one should take? I think exchanging socials and all yeah, beforehand, Yeah. कि मतलब at least to verify. yeah. But like
what all precautions and what can be the red flags also? या अगर आपको लग रहा है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और आप मुझसे बहुत से प्यार से बात कर रहे हैं, अनलाइकली वी आर टॉकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई वुड बी लाइक, ये मुझसे इतना प्यार से क्यों बात कर रहे हैं, एकदम से इतना ज़्यादा इसको प्यार कैसे आ रहा है मेरे पे. सो इट्स लाइक यू शुड नोटिस दैट्स नॉट लाइक अ रेड फ्लैग, बट दैट्स लाइक अ वेरी काइंड ऑफ अ ट्रिगर वाला थिंग कि हमें नोटिस करके इतना ज़्यादा प्यार इज़ लाइक अ थोड़ा नॉट अ गुड ग्रीन. Second could be, who's not sharing the personal information. Like for example, I'm asking you, where have you done your college from? Which school are you from? Or where are you from? मतलब ज़्यादा कुछ share नहीं करना. तो वो एक दूसरा हम कह सकते हैं कि it's a red flag. Right. Third could be, like before meeting, you could try having a video call just to see, that in person, if that person is there. Maybe some people are pretending to be someone else, like they have a fake ID ki ladki ki ID bana liyan hai ladka. So to avoid that thing, you could try even having a video call. So I remember, so one of my friends, so she was on Bumble, so she matched with someone and then क्या हुआ कि she was like कि no, I'm not meeting him एकदम से अभी, but they exchange socials, नंबर्स एक्सचेंज हुए, ठीक है. नॉर्मली दे वर टॉकिंग, सोशल मीडिया भी ले लिया है बंदे का, सब एकदम प्रॉपर तरीके से बात चल रही है. तो कॉल पे भी एकदम ही इज़ प्रेटी नॉर्मल, लाइक जस्ट लाइक अ नॉर्मल गाय, ठीक है. तो क्या हुआ कि 2 से 3 महीने बाद सो दे फाइनली डिसाइडेड कि चलो लेट्स कैच अप, ठीक है. तो व्हेन द गाय केम, लाइक दैट गाय ही वाज अ टोटली डिफरेंट गाय. वो और मतलब कैन यू इमेजिन, लाइक ही गेव हर हिज सोशल्स एंड सब, मतलब उसमें जो भी फोटोज थी सब था एकदम अलग था. एंड बिफोर मीटिंग द गर्ल उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह सब डिलीट कर दिया. एंड देन द गर्ल वाज लाइक, डूड you're not that guy जिससे मैं बात कर रही थी, यू someone else. So he was like कि नहीं I'm that guy. and तो she was like, why the hell would you do that? मतलब इमोशनली, मतलब तो 3 महीने बात कर रही थी एंड शी वॉज क्वाइट इंटरेस्टेड इन हिम कि भाई सही, ही सीम्स लाइक अ डिसेंट गाय. एंड मतलब प्रॉपर बात करने के बाद देन शी फाउंड आउट कि भाई ये कोई बंदा है ही नहीं. तो सच केसेस आर हैपनिंग एंड इट्स क्वाइट वियर्ड. So as to my question, like as to your this case, it could be like too perfect. Like people nowadays show like that they are too beautiful, too perfect. And some guy, for example, a normal guy, and a girl like too beautiful for him, he'll be curious na कि इतनी सुंदर लड़की मुझे कैसे मिल गई. So that could be also a scam. That could be like a model photo or anybody else, right? And people like meeting, initiating for कि हमें room में मिलते हैं, let's just sit at your place, chill at my place. So I think you should be initiating for outer places, like public places. So have you watched that series Netflix पे Sector 36? Yeah, definitely. So yeah, so dude, crazy. मतलब that guy मतलब अलग लेवल का साइको. सो विक्रांत मैसी. हाँ मतलब भाई, मतलब एक्टिंग तो बहुत नेक्स्ट लेवल थी उसकी, बट स्टिल. तो उसमें क्या होता है वही कि ह्यूमन फ्लैश खाता है वो बंदा, ठीक है. और बच्चों को काट के स्टोर करके बाद में उसे लत लग जाती है ह्यूमन फ्लैश खाने की. सो what is your take on that? So I think they're shown very nicely in that series. मतलब पूरा अच्छे से डिपेक्ट किया है जो एक्चुअल केस था, जो हुआ था. सो टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर, सो जैसे वो आपने बताया फ्लैश खाता था, तो उसको हम क्रिमिनल साइकोलॉजी में कैनिबलिज्म कहते हैं. दैट टर्म यूज फॉर ह्यूमन फ्लैश ईटिंग, इट्स कॉल्ड कैनिबलिज्म. So basically these psychopath people, they have this human gratification instant. Like जैसे उसने एक डायलॉग बोला है कि मुझे लत लग गई थी. तो the terminology I would see that it's like a exploration of human nature. So उसको instant gratification और एकदम से satisfied होता है ना, pleasure मिल रहा था. So he was feeling like that full power and control. So as we see through the series that उसके साथ अगर आपने देखा हो कि उसके अंकल ने उसके साथ चाइल्डहुड अब्यूज, एंड सो ही गॉट दैट ट्रॉमा फ्रॉम देन एंड देयर, एंड देन ही न्यू हाउ टू डाइसेक्ट
बिकॉज वो बुचर थे तो उन्हें पता चल गया था कैसे करना है. एंड राइट देन उससे आग में अगर आपने नोटिस किया हो तो उसने सिर्फ बच्चों को टारगेट किया है, राइट बिकॉज यू नो किड्स आर इजी easy to manipulate, and then he could show a sense of power, control over them, and उसे पता है जो मैं बोलूँगा बच्चे करेंगे, डरेंगे, authority, so he would like to take the control over with it. राइट. So I think if you see his thing, so that's like a more of a antisocial disorder. तो मतलब जिस तरीके से यू मस्ट हैव सीन जब इंटरोगेशन भी चल रही थी उसकी, कितना मतलब बहुत ही अलग ही बिहेवियर था उसका, बहुत ही नेक्स्ट लेवल साइकोपैथ था, मतलब जैसा सीरीज में अगर देखा. आपने एक और सीरीज देखी हो नेटफ्लिक्स की, इंडियन प्रेडेटर, सो दे हैव दीज 3 वर्जन्स. अच्छा. One is the serial killer, one is the diary of a serial killer, and one is in the murder in the courtroom. So one of his I'm going to talk about, that is with the diary of a serial killer. So उसमें क्या होता है, सुरेश कुमार होते हैं जो हैं, and he, I think he's still serving in jail, or I don't know he's dead or not, but when I watched it, they had the recording, his confession was there. So at the end, if I see and anybody sees, he has no guilt. मतलब वो बोलता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है. तो उसमें होता क्या है मतलब? उसमें ये होता है, तो बेसिकली वो टारगेट करता है यंग वुमेन, बॉयज़, मतलब दोनों को, बट ऐसे लोगों को टारगेट करता है जो बहुत इजीली मैनिपुलेट और मतलब बहुत जल्दी उसकी बातों में आ जाए. एंड देन ही यूज्ड टू टॉक देम, उनको ले गया, फिर उनका मर्डर कर दिया. बट द वे ही यूज्ड टू टैकल, उसने जब डाइसेक्ट किया, द डिफरेंस अदर देन ऑल द केसेस इज दैट ये बॉयल करता था ब्रेन्स. लाइक बाकी सब काट के रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर रहे हैं, खा रहे हैं, फेंक रहे हैं, बट ये ब्रेन को बॉयल करता था. एंड ही बिलीव्ड दैट अगर मैं ब्रेन को बॉयल करूँगा तो इसकी इंटेलिजेंस मेरे में पास ऑन हो जाएगी. दैट वाज हिज डिल्यूजनल पार्ट. That is what he thought. भाई साहब. So, you know, people can go to such extent and think like this when normal people are not even thinking. So उसने काफ़ी सारे मर्डर किए एंड उसको कोई गिल्ट नहीं था. तो मतलब उसको ये था कि अगर मैं बहुत इंटेलिजेंट बंदा है, हाँ, तो उसका ब्रेन खा वो लूंगा. पिक करता था, वो अपने जो ज़्यादा वल्नरेबल होते थे उनको पिक करता था, जो मतलब इजी टू टारगेट है. तो मतलब ब्रेन बॉयल करेगा तो फिर मतलब हाँ, कुछ तो मतलब इंटेलिजेंस वो होगी, पास ऑन हो जाएगी. पास ऑन होगी. यूजुअली लोग क्रिमिनल तभी बनते हैं ना या कि जब कुछ ना कुछ उन पे बीता होता है या कोई ऐसा ट्रॉमा होता है, या तो मतलब दे थिंक कि मतलब नाउ वी वांट टू हैव दैट कंट्रोल, या दैट पावर, दैट वो बताना डोमिनेंस. चाहते हैं सोसाइटी को, मतलब वो दे कैन नॉट एक्सप्रेस, मतलब उनके साथ जो हुआ होता है वो एक तरह से रिटर्न बैक करना चाहते हैं. सो इसलिए दे जस्ट हैव देयर ओन वे टू यू नो गेट बैक टू द सोसाइटी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस केस जो एक क्रिएटर कैलाश का केस था ऑफ अ बिजनेसमैन? Okay. सो आई विल टेल यू. तो दैट वाज इट वाज ड्यूरिंग टाइम ऑफ कोविड. ठीक है. तो आई वाज वाचिंग दिस पॉडकास्ट ओनली जिसमें मुझे मतलब केस के बारे में पता चला था. फिर मैंने थोड़ी रिसर्च करी थी, वैसे ही थोड़ा देखा था. आई थिंक राज शमानी का एक पॉडकास्ट था कोई. अच्छा. ठीक है. तो उसमें मैंने देखा था. सो दे वर टेलिंग कि एक इंदरपुरी का आदमी था, देवेंद्र मोहन शर्मा. ठीक है. सो उसकी बेटी थी दिव्या. ओके. तो उसने ग्रेटर कैलाश की एक फैमिली है, हाँ. ठीक है, वहाँ पे उसकी शादी करवाई. तो शादी के बाद दिव्या शी वॉजंट एबल टू कंसीव. तो शी वेंट टू अ क्लिनिक अपने घर के पास. सो द लेडी शी सेड लाइक शी कैन हेल्प, सो शी कैन गेट प्रेग्नेंट थ्रू IVF. ठीक है. Okay. सो उसके ट्विन्स होते हैं, एक लड़का एक लड़की. Yeah. उसके घर में द गाय, सो हिज नेम इज़ वरुण अरोड़ा, जिसके साथ उसकी शादी होती है. सो देयर इज दिस गाय, दिव्या, उसके बच्चे एंड इन लॉज हैं. ठीक है. मदर इन लॉ, फादर इन लॉ. तो क्या होता है कि नाउ अब कोविड का टाइम आता है. सो कोविड के टाइम पे द गाय's फादर, वरुण's फादर, चंद्रलाल, ही पास अवे, Okay. ही डाइज ड्यूरिंग कोविड. तो क्या हुआ कि उसके 2-3 महीने बाद ही दिव्या शी कंसीव्स नेचुरली. तो क्या होता है कि शी वेंट फॉर अ रेगुलर चेकअप. तो द डॉक्टर ओवर देयर शी सेड दैट देयर समथिंग रॉन्ग, यू विल हैव टू अबॉर्ट द चाइल्ड
Okay. एंड तो उसे एडवाइस किया अबॉर्शन के लिए, अपनी मदर इन लॉ को और अपने हस्बैंड को जाके बोल दिया सो कि मुझे एडवाइस किया अबॉर्शन कराने के लिए बिकॉज देयर समथिंग रॉन्ग। तो वो एकदम अगेंस्ट हो जाते हैं कि मदर इन लॉ और उसके हस्बैंड सर पे चढ़ जाते हैं उसके कि लाइक डोंट यू डेयर यू नो थिंक Get अबाउट abortion, या yeah. सो मतलब बहुत ही नेक्स्ट लेवल उसको मतलब टॉर्चर करने की भाई नहीं करा सकती है तू। तो क्या होता है कि गुस्से में एक दिन ये जाके अबॉर्शन करा लेती है Okay. विदाउट इन्फॉर्मिंग And the husband हर। and mother-in-law, हाँ yeah. ठीक है, वो जाके करा लेती है। तो उसके बाद तो मतलब उसका हस्बैंड ही स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक अ साइको, Okay. दैट गाय वरुण अरोड़ा। Okay. वो कहता है, तो फिर उसके बाद वो कहते हैं मतलब उनकी थ्योरी ये थी उसकी मदर इन लॉ की और उसके हस्बैंड की कि द चाइल्ड ही वॉज चंद्रलाल। तो Because of क्योंकि he just died and हाँ and she हाँ, was pregnant. सो इट That's वॉज why. देयर रीइंकार्नेशन हाँ. स्टोरी, मतलब वो Yeah, बिलीफ था yeah. जो Their उनका। myth. Yeah. मतलब जो भी था, Belief हाँ system. ठीक Yeah. है। तो फिर वो तो साइको की तरह बिहेव करने लगता है जो हस्बैंड होता है। तो वो कहता है उसको कि मैं तुझे भी मारूंगा और तेरी पूरी फैमिली को मैं ख़त्म कर दूंगा। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि 2021 दिसंबर जनवरी, 2020 का दिसंबर एंड 21 का जनवरी अराउंड, सो व्हाट ही डज इज़ ये अपनी रिसर्च करता है एंड ही फिगर्स आउट कि जो इसके फादर इन लॉ हैं वरुण के, उसके फादर इन लॉ के बड़े भाई की एक होम्योपैथिक कंपनी है। Okay. ठीक है, तो ये अपना रिसर्च वगैरह करता है पूरा डार्क वेब पे जाके मर्करी वगैरह से रिलेटेड सब चीज़ें। ठीक है, बट तो इसने फिगर आउट किया कि उसकी कंपनी है। तो क्या करता है ये कि पेपर्स वगैरह बनाता है, नकली पेपर्स वगैरह, मतलब अपनी प्रिपरेशन चालू कर देता है कि ये अब क्या करना है इसने। ठीक है, तो अ, उसके थ्रू वो ऑर्डर करता है थेलियम। Okay. ठीक है, सो नकली पेपर बिकॉज यू कांट रियली गेट Yeah. इट। Order like this. हाँ Yeah. You will not get it. हाँ, कोई नॉर्मल केमिस्ट शॉप पे जाके It's तुम्हें not ऐसे नहीं मिल सकती है। permission. Yeah. तो उसने होम्योपैथिक के उसके पता नहीं नकली पेपर वगैरह बनाए कुछ। ठीक है, एंड देन उसने क्या किया कि पंचकुला की एक कंपनी थी, वहाँ से उसने थेलियम सल्फेट मंगा लिया एंड गुड़गांव में कहीं पे जाके इसने ही कलेक्टेड दैट 20-25 ग्राम के आसपास इसने कुछ मंगाया, कुछ फर्जी पेपर वगैरह बना दिया आफ्टर लाइक रिसर्चिंग। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि जनवरी 31 को दिव्या शी वेंट टू हर मायके अपना, ठीक है, घर गई। तो अब क्या होता है कि दिव्या की छोटी बहन भी है प्रियंका। ठीक है, शी इज स्टडिंग इन लंदन। ठीक है, शी स्टडिंग अकाउंट्स इन लंदन, तो वो भी आई हुई है। तो क्या होता है कि वो जाती है अपने घर दिव्या, तो पीछे से ये क्या करता है, ये 3-4 किलो बासा फिश मंगाता है। थेलियम की एक और चीज़ ये है कि मतलब यू कांट सी दैट, इट्स नॉट विजिबल, Yeah. यू कांट स्मेल इट। ठीक है, एंड कोई टेस्ट कुछ नहीं है इसका। ठीक है, बिल्कुल मतलब तुम ले लो कि पता ही नहीं चलता तुम्हें कि यू आर एक्चुअली हैविंग थेलियम। Yeah. तो अब ये क्या करता है, ये भाई साहब जी फिश मंगाते हैं और फिश बनाते हैं सबके लिए, बासा फिश मंगा के सबके लिए बना के उसके अंदर थेलियम डाल के टिफ़िन विफ़िन पैक करके ये ले जाते हैं अपने ससुराल। हाँ. ठीक है, सो वैसे तो मतलब वो कभी जाता नहीं था वहाँ, तो उसके ससुराल वाले भी कहते हैं कि यार ये एकदम से कैसे आ गया, उनको भी भाई हो गया कि चलो अच्छी बात है। तो इसने सबको फिश खिलाई। ठीक है, ससुराल में अपनी बीवी को भी खिलाई, मेड को खिलाई, इन लॉज को खिलाई। बट जो प्रियंका है उसकी सिस्टर जो है, तो वो गई हुई थी लंच पे बाहर। Okay. तो शी वॉज इन दिल्ली, मतलब आई हुई Okay. थी लंदन से, तो वो लंच पे गई हुई थी बाहर। तो उसने वेट किया उसका, ठीक है, कि जब कब आएगी जब भी, तो मतलब जैसे दोपहर को गया, पूरा शाम तक पूरा वेट किया। वो जब आई उसको और ज़्यादा खिलाया उसने कि मतलब यू ऑल्सो हैव इट, पूरे फैमिली को सबको फिश खिलाई। ठीक है, फिर उसके बाद भाई साहब जी ले गए दिव्या को वापस कि चलो ठीक है, वापस आ गए जी के। तो क्या हुआ कि 5-6 दिन बाद प्रियंका जो दिव्या की छोटी बहन है, सो वो बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा। सो क्या हुआ कि मतलब
ले गए वो डॉक्टर्स के पास, अपोलो ले गए, हॉस्पिटल ले गए उसको। तो वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स को समझ ही ना आया कि इसको हुआ क्या है। ठीक है, तो अब नॉर्मल टेस्ट वगैरह करे, कुछ कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये लोग उसे ले गए एक हॉस्पिटल है करके, BL के कपूर। Yeah, it's in ठीक है। Pusa Road, yeah. तो ये लोग वहाँ भी ले गए उसको। ठीक है, तो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड इज कि पता चला नहीं, एंड आफ्टर 10-15 days शी पास्ड अवे, Hmm. प्रियंका। वो हॉस्पिटल ने रीज़न क्या दिया उसका कि रेबीज़। Oh my God. ठीक है, और उसका रीज़न दिया उन्होंने रेबीज़, और बोला कि कोई सिंड्रोम है इसको, बट उससे यूजुअली लोग मरते नहीं हैं, बट उन्होंने वैसा कुछ रीज़न देके। But rabies कैसे ठीक है, होगा? हाँ, बट मतलब कि पता ही नहीं चला वो चीज़ हाँ। की क्या है उसको। तो फिर क्या हुआ कि वो देख रहा है अब, वरुण जो लड़का है वो नोटिस कर रहा है कि यार मेरी बीवी तो बीमार हो ही नहीं रही है। हाँ. ठीक है, तो वो और डोजेज मंगाता है और एडमिनिस्टर करता है उसको। ठीक है, थोड़ा चेक करता है अगेन कि भाई कब थोड़ी हालत बिगड़े इसकी। तो कुछ टाइम में उसकी बीवी भी बीमार हो जाती है। वो ले जाता है उसको, उसके फादर इन लॉ कहते हैं लड़के की कि अब इसको क्या हो गया। तो ये लोग उसको ले जाते हैं गंगाराम हॉस्पिटल। तो गंगाराम हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर कुछ टाइम बाद उसकी मदर इन लॉ भी बीमार हो जाती है लड़के की, यानी दिव्या की मम्मी भी बीमार हो जाती है। एंड देन सारे एकदम ऐसे बीमार हो जाते हैं। तो गंगाराम में क्या होता है कि एक रिटायर्ड मिलिट्री का डॉक्टर होता है। तो वो कहता है कि यार ये बहुत ज़्यादा अनयूजुअल है, ये कैसे हो रहा है कि मतलब सारी की सारी फैमिली। तो वो कहता है, वो बंदा होता है जो पहचान जाता है, कहता है कि आपको किसी ने बहुत ही ज़बरदस्त जहर दिया है। तो क्योंकि उसके फादर इन लॉ भी फिर थोड़े बीमार हो जाते हैं, बट तो फिर वो चेक करते हैं तो वो पॉजिटिव आता है उसके लिए जहर। तो मतलब स्पेसिफिकली उसके लिए टेस्ट किया जाता है, उन्होंने टेस्ट वगैरह किया प्रॉपर, तो उसमें वो लोग पॉजिटिव निकलते हैं। एंड मतलब उसकी जो वॉल्यूम था उसका Dosage. जो डोजेज का वो था, वो इतना ज़्यादा था, मतलब दैट वाज इन थाउजेंड्स, मतलब कि दैट इज़ अलॉट। ठीक है, एंड उसकी वाइफ का, वरुण की वाइफ का अराउंड 8,000 कुछ था, एंड उसकी मदर इन लॉ का अराउंड 4,000 कुछ था। तो वो चेक करते हैं तो वो भी पॉजिटिव निकलते हैं। तो क्या होता है कि दिव्या ऑल्सो शी डाइज 1-2 दिन में, एंड ऑल्सो उसकी फिर मदर भी उस शी ऑल्सो डाइज, एंड उसके फादर को किसी तरह बचा लिया जाता है। तो एंटीडोट दे के तो किसी तरह मतलब वो बच जाते हैं उसके फादर। तो फिर मतलब मैं वही पॉडकास्ट देख रहा था, फिर मतलब मैंने रिसर्च करी थी जो, तो वो फिर केस फाइल करते हैं उसके बाद। एंड देन सबसे बड़ा ट्विस्ट कहाँ आता है कि जो हमारा सिस्टम है इतना करप्ट जो है, उसकी स्टोरी आती है आगे। तो क्या होता है कि पुलिस को दे इन्फॉर्म, ठीक है, कि भाई हॉस्पिटल से ही इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि ऐसे ऐसे सीन हुआ है। तो पुलिस आ जाती है, दे ट्रैक डाउन एवरीथिंग कि हाँ भाई दिस हैपेंड। ठीक है, तू फिश लेके गया था, सारी चीज़ें हुई हैं, पकड़ा जाता है। तो अब तो कोई वो है ही नहीं कि वो बच पाए, है ना। बट द थिंग इज़ दैट अब वो क्या करता है, वरुण कहता है उनको कि सर आप मेरे साथ चलो, मेरे घर पे अच्छा खासा मेरे पास माल पड़ा हुआ है, मैं पैसे हैं, आप सारे पैसे ले लो, मुझे छोड़ दो। तो भाई साहब जी क्या करते हैं, वो चले जाते हैं, ये सारे जो पुलिस वाले थे ये अपना क्या करते हैं कि इसके साथ जाते हैं, पैसे वगैरह लेते हैं और कहते हैं कि अब तू बचे, ऐसे तो बच नहीं पाएगा तू, तो तेरे पास थेलियम है पड़ा हुआ है घर पे। तो वो कहता है हाँ मेरे पास पड़ा हुआ है। तो क्या करते हैं, उसको भी डोजेज दे देते हैं और फिर हॉस्पिटल भेज देते हैं उसे कि अब एंटीडोट लग जाएगा, वो बच जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट कि उसको बचा लेते हैं कि मतलब यू गेटिंग माई पॉइंट कि भाई ही इज़ द ओनली वन। ठीक है, वो अकेला था जिसने वो थेलियम नहीं लिया हुआ था, राइट। तो मतलब इवेंचुअली फिर अरेस्ट होने के बाद उसको थेलियम दिया जाता है, एंड दैट इज ऑल द प्लॉटिंग एंड ऑल डन। बट दैट गाय मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, एकदम शादी के कुछ साल एकदम अच्छे से बीते, एंड दिस वन इंसिडेंट ही बिकम्स एकदम से ही बिकम्स पूरा साइको, एंड ही वाइप्स आउट द इंटायर फैमिली
of his wife. I think this is more of, in out of anger, rage, that because she did not listen to them. And they believe that it's their father. He is like, having incarnation, मतलब वापस आ रहे हैं. तो होता है ना हमारे कई रूटेड कल्चर में, लाइक इंडियन रूटेड कल्चर में ऐसा होता है, ऐसा बोला जाता है, लाइक बैक इफ़ यू गो टू विलेजेस एंड ऑल, कि किसी की डेथ हुई और 2-3 दिन बाद कोई वुमेन प्रेग्नेंट हो रही है, तो दे बिलीव कि देयर ancestors or they're blessed कि हाँ वापस आ रहे हैं. So and you are saying his mother also was against it. So I think the mother and the son, they had this false belief, and then he just out of anger, out of rage, again not seeing the line which is right and wrong. So he just believed that he just wanted to kill, Right. and then he just did it. People, they just want revenge, Yeah. and for that they are willing to go to any extent. Yeah. Have you seen, वो तो पता ही होगा, that Burari. documentary? हाँ. Burari case. What is your take on that? Like, do you have any term in psychology Yeah, for it such is- like such It's people? या क्या? shared psychosis. We call it shared psychosis, like when a person is, having psychosis, and shared would be like that I am having a problem, and then the other person has got also that. So shared is like, so there were 11 people. तो 11 के 11 11 पागल के थोड़ी 11 होंगे. नहीं. So first of all, the terminology pagal is a very wrong. मतलब 11 के 11 मतलब थोड़ी That's उनके you can say shared delusional. Like they were following false belief कि एक बंदे को blindly follow करना, क्योंकि the main character in that Burari case, there was this guy, okay, so everybody was following him, कि उनको लगता था उनके डिसीज फादर आके उन्हें सारा गाइड कर रहे हैं कि ये करो रिचुअल वो करो. तो एवरीबडी स्टार्टेड ब्लाइंडली. सो इट वॉज नॉट लाइक कि एकदम से हो गया, बट देन दे हैव दिस फर्स्ट उसने एक सेकेंड थर्ड एवरीबडी स्टार्टेड ट्रस्टिंग. So and then they started believing in the higher authority and higher belief system. उनका खुद का एक superstition मतलब level generate हो गया, and then they started performing these unwanted rituals, and they never told anybody कि बाहर नहीं बताना. So this was all because that guy, if you see, he had this trauma, he had this guilt, that because of him his father died. So I think out of that trauma or out of that guilt, ये पूरा एक delusional पूरा एक उसने अपना वो बना लिया, and because of that everybody got killed. Right. And I believe that whole 11 members, I mean, couldn't see it through. None, like any, not even one of them. I mean, सब उसके कहने में आ गए. And as we see, I think shared psychosis, we can say that, this can happen, between like a very close family member or a partner or a dominant person who has already psychotic issues, which will influence the action and behavior of the other, individual. So, yeah. Right. So there's a lot of hype about this documentary on Jeffrey Dahmer, Okay. right? Yeah. Yeah. So do you want to discuss Yeah, that yeah. case? It's a very famous documentary on Yeah. Netflix, and I think people are going crazy over it. A lot of people, they don't know about Yeah. the whole story. Okay. So yeah. So yeah, okay, we'll tell. So his name was Jeffrey Dahmer, and this story back goes to 1978, and this guy killed around, I think, 17 young men, I think approx. And so इसकी कहानी ये थी that he used to stay with his father. His family dynamics were not good, so he was already traumatized by that. And इसके dad इसको बचपन में dissect करना सिखाते थे dead animals. कहीं से भी उठा लाते थे. तो in a very early age he learned how to dissect animals. So during like going through school and college life, like as soon as he grew up, so I think he was exploring his sexuality, which he was not aware of. He thought he was straight, but during back at that time 1978, gay was like a very big thing over there also. फिर उसके बाद ये डिसाइड करता है कि अब मैं डेट पे जाऊँगा लड़कों के साथ, एंड देन ही मूव्स टू अ प्लेस, ही टेक्स अनदर प्लेस, एक किसी गे पब के पास एक फ्लैट लेता है, एक अपार्टमेंट, एक बिल्डिंग में,
और वहाँ पर ये फिर जाने लग जाता है. So he starts getting one by one. I think his first murder made him feel that pleasure. तो इसका first तो वो murder मतलब लोगों को लेके आके मर्डर करने के लिए लेके आता है घर पे? नहीं, पहले उसे नहीं पता था, तो मैं आपको बता रही हूँ क्या होता है. पहले एक बार ये ड्राइव से घर जा रहा होता है, सडनली से एक लड़का दिखता है. ही वॉज गोइंग थ्रू अ कॉन्सर्ट, ही आस्क फॉर अ राइड और ये बोल देता है कि हाँ लेट्स आई विल ड्रॉप यू. बट देन इन द वे ये बोलता है आई विल कम टू माई होम, विल चिल एंड देन आई विल टेक यू टू कॉन्सर्ट. सो ये उसको आराम से घर पे लाता है, इसको बोलता है तू बियर वियर पी और मतलब रिलैक्स रहे. And then what happened? This guy says, "How much time? You know, I'm getting late. I have to leave." So Dahmer gets very annoyed, matlab, because he doesn't know he's straight or gay, but he gets that arousal, you know, and he doesn't want that person to leave. So what he does is that he says, "No, stay. We'll go. Just stay for a while." And then he comes really close. But then this guy understands this. There's something weird going on. So एकदम से वो जब बाहर जा रहा होता है, Dahmer, you know, takes up something and literally heads, you know, beats him on the head. And वो I think he dies on spot. And then इसको जब dissect करता है, take out his organ, eat it, then he gets pleasure having, you know, sex with the dead bodies and, you know, enjoys eating the flesh of the, just feel too close with the victim. So he felt like too close, you know, like a sort of a connection. And so in that term in criminal psychology we call it necrophilia. So afterward this was the first case. Obviously nobody knew that he brought someone home, he killed and it was disposed of. Pub जाता है, gets a guy to his flat, आराम से drink कर रहे हैं, just फिर अगेन उसे मार देता है. yeah, he kills off, matlab he starts praying every day and kills off. I think till the time he would have killed 17 people. I think the 18th guy or the 17th guy was saved. How? Because so this guy I think was बहुत छोटा था. I think मतलब छोटा बच्चा ही था. I don't think he was at the same age of Dahmer. And he comes to his flat and all, like, you know, Dahmer उसको manipulate करके ले आता है. And then I think Dahmer was preparing was something, was another room, he was preparing was something, and ये इस guy को बिठाता है, TV on कर देता है to make him chillax and everything. But then this guy sense something is wrong, okay, and then when he sees that Dahmer he will kill him or he sees something, he sense something is wrong, तो एकदम से push करता है Dahmer को and he tries to run off. तो इन लोग की थोड़ी आपस में, you know, fighting होती है, little bit of like, you know, chasing and all. But then this guy manages to escape the building. And then और इस बीच में मतलब I forgot to tell that like before this you know, the foul smell used to come out of his flat. So the neighbor constantly used to complain कि आपके घर से इतनी स्मेल आ रही है. And then used to be like कि ऐसी ऐसी है. तो जब ये बंदा मैनेज हो जाता है escape करने से, he calls the cop and everything that this guy tried to kill me and assault me. So the police comes, checks, but they don't find. But then suddenly they open the fridge and then they see this whole flesh, you know, the meat stored and lot of it. And then they go back to the back of the building, then they see dustbin and all, and then they see how he disposes of. Then they start, you know, investigating. And when they call off Dahmer to their you know, police bureau and all, so he tells them everything, you know, that what I used to do, how I used to do it, and how I used to dispose them off. He had this acid to burn them after it. And then they called his father and then they told his father about everything. And उस टाइम पे भी इसे बहुत ज़्यादा वो मिला था क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी. And Dahmer became really famous because of this. So you were telling me, I remember you were telling me about another case, that Albert Fish. Yeah, so Right. there is another famous case, Ted Bundy and Albert Fish. So Ted Bundy has also a documentary on Netflix. Okay, he also killed 30 young women and same assault, murder, rape. तो एल्बर्ट फिश जो था वो औरतों को एबडक्ट करता था और ल्योर करके मैनिपुलेट करके उनको लाना, उनको मार डालना और ख़ुद भी सेल्फ हार्म करता था. सो दिस वाज आल्सो अ वेरी डार्क केस एट दैट टाइम. एंड सम पीपल से दैट ही यूज्ड टू मतलब कुक, eat the meat, flesh of their victims, make stew, add chopped vegetables in it, and then he used to poop and then used to eat those feces. But it's not fact, but some people say.
So in that, like in criminal psychology, eating feces, act of eating fetus is coprophagia, like what we call. सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा. काफ़ी केसेस Yeah. डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी ह्यूमन फ्लैश की बात हो चुकी है. So I think with this we'll end this podcast. Yeah. And thank you so much again, Malika. Thank you so much for coming. Yeah. So just before ending this podcast, एक चीज़ मैं और ये बोलना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा इनफैक्ट कि what leads to a criminal mind? I think my answer would be again the first question we talked about, nature versus nurture, and also negative traits I would like to tell, which we didn't talk about. See, the negative traits could be, you know, leading जैसे jealousy हो गई, manipulation, lack of empathy, control, possessiveness, obsession. एक तो यही हो गया कि हम ये अर्ली साइंस नोट कर लें किसी में अगर बहुत ज़्यादा है, एग्रेशन, रेज. और जहाँ तक बात है बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड यू नो सोशोलॉजिकल, तो बायोलॉजिकल मैं आपको बता चुकी हूँ, जो हमारे कंट्रोल ब्रेन फंक्शंस में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो डेफिनेटली वायलेंट बिहेवियर को लीड करते हैं. सोशोलॉजिकल, if we see a person going through some trauma, some sexual abuse in childhood or afterwards, I mean, you have your answer. Right. Thank you so much, Malika, again. So with this, we'll end this podcast. And again, guys, thank you so much for watching. I hope you guys really liked it, and would mean a lot to us if you guys could just like, subscribe, and share. Thank you so much again.